Hello and welcome to another edition of Elections Unlocked, your one-stop show for all the day's top election stories. We're coming to you from the Taj Lands End in Mumbai. Maharashtra goes to the polls in a few weeks from now, and we're at the India Today conclave. Remember though, there are other states that are going to the polls as we speak, including Jammu and Kashmir, which is our top story because it was in Jammu and Kashmir that the second phase of polling took place today. Across 6 districts, 26 seats decided the fate of 239 candidates. The second phase covered 15 seats in the Kashmir Valley, 11 seats in the Jammu division. This seat is seen as crucial because several big contenders, Omar Abdullah of the National Conference, the former chief minister, is contesting. Ravinder Raina, the BJP strongman, is also in the race in this section, and Altaf Bukhari of the Apni party. The big news, of course, turnout relatively good again. 55% will be seen as a success. What happened on the ground? Mir Farid reports. The second phase of polling in the Union Territory of Jammu and Kashmir was the crucial one for major political parties, with several high-profile candidates in the fray. Among the 239 candidates contesting across 26 constituencies are former Chief Minister Omar Abdullah, Bharatiya Janata Party State President Ravinder Raina and Apni Party Chief Altaf Bukhari. कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे. I am quite confident the people of whole Jammu and Kashmir will support Bharatiya Janata Party. The way our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Sahab and Shri Amit Shah Sahab did the commendable job and brought peace, prosperity and normalcy in Jammu and Kashmir. The development has touched new heights in Jammu and Kashmir. Definitely people will vote for BJP and we will. The assembly segments in the second phase were spread across the central Kashmir districts of Budgam, Srinagar and Gandarbal, as well as the Poonch and Rajouri districts in the Jammu region. Though the voting percentage in Srinagar was low compared to other places, in areas known for boycott, people came out to vote with enthusiasm, especially senior citizens like this centurion in Riyasi. अच्छी कोई गवर्नमेंट आएगी तो चलो बच्चे हैं कारोबार कोई खुलेगा तो बड़ी अच्छी बात है. आज ये किसी की गवर्नमेंट आए किसी की भी आए पर लेकर आनी चाहिए किसी की अच्छी गवर्नमेंट. Paralympic archer bronze medalist Rakesh Kumar exercised his voting right for the formation of assembly in the Union Territory. जब से 370 हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट से हटा है, काफ़ी सारे बदलाव जो हमें देखने को मिले हैं और अभी जो इलेक्शन हो रही है इसमें जो भी सरकार आएगी मुझे लगता है कि और भी काफ़ी सारे बदलाव जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं वो अभी आप देखेंगे. देखिए सर, जहाँ तक बात है कैंडिडेट की, मैं समझता हूँ कि हमारा जो वोट है वो हमें कास्ट करना चाहिए, वोट जरूर करना चाहिए. We are in a polling station in the Bemina area now. More than the queues here, it's really colorful. There are flowers and then there is this pink voting station, which means that it's for ladies as well. There are special arrangements for the women. Now on this side, there is a selfie booth as well. There is a selfie point where after casting the vote you can take a selfie. So these are different steps that have been taken by the ECI to make it more attractive for the voters to come and vote. Though as far as your question queues are concerned, there are many areas there where queues are already could be seen, but as far as Srinagar polling stations are concerned, it is a slow build up now. There are some people here. Ma'am, आप कहाँ से हैं? हम बीमिना से हैं. जी जी, आपका नाम? शमीमा खान. शमीमा जी, कैसा अभी माहौल लग रहा है? वोटर अभी कम आ रहे हैं, आगे बढ़ेगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं पड़ेगा. अभी सवेरा है इसलिए नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. जी, इस पोलिंग स्टेशन में हम लोकसभा में भी आए थे, काफी वोटर थे. जी, अभी भी बहुत सारे हैं. आप देखिए अभी कहीं कहीं एक दुकान, लेकिन यहाँ देखिए कितने हैं. बहुत कितने. तो मुद्दे क्या है यहाँ, लोग क्या मसले हैं? सारे मसले हैं. सबसे पहले बेरोजगारी, सबसे पहले महंगाई, सबसे पहले कोई स्कीम नहीं, वही परेशानी लोगों में है. Bureau Report, India Today.
The next and final phase of voting will now take place in Jammu and Kashmir on the 1st of October. Among the areas that will go to the polls in that phase will be in North Kashmir, in Baramulla. My colleague Pooja Shali went to Baramulla to bring you this report on the Sikh community and what they're looking for from this election. Take a look. Baramulla district has a prominent presence of the Sikh minority population. Estimates suggest that 80,000 Sikhs reside across the valley. Approximately 10,000 are in Baramulla's assembly segment. I reached out to one Sikh family to understand their expectations from the next government. इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई बात कर रहा है सिखों के बारे में या उनके इश्यूज के बारे में? बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं हमें नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से हैं, क्योंकि देश बदला है, सिचुएशंस बदली हैं, जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन चेंज हुई है, तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम। जब रेडर्स ने कश्मीर को इन्वेड किया था, जी उनका नारा था मुस्लिम का घर, हिंदू का जर और सिख का सर। सिखों को तो बख्शा ही नहीं जाना था। उसके बाद 200-250 हमारे लोगों की कैजुअलिटी है, टारगेट किलिंग्स। इवन की कल तक पीआरआईज के इलेक्शन होते, मैं खुद सफरर हूं, मेरे घर पे ग्रेनेड अटैक हुआ। मिलिटेंट्स 2021 में मेरे घर के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। हमारा गुना सिर्फ ये था, माय मदर वाज ए सरपंच फ्रॉम ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। हमारे साथ ये कुछ हुआ, हमने इतना कुछ झेला हुआ है। हमारी एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाए तो हम लोगों को भी कोई सेकंड क्लास सिटीजन ना समझा जाए। हम लोग इस देशभक्त हैं, हम लोग देश के लिए कुर्बानी हो, कश्मीर के लिए कुर्बानी हो, हम हमेशा आगे रहे हैं। कोई भी लीडर आए, मैं कहता हूं एक प्रजा जो है चुनने जा रही है, एक हमारा नया लीडर बन रहा है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का, मगर उसको मैं कहता हूं जो प्रजा चुनने जा रही है, प्रधान बन रहा है, इसको चाहिए एक मां जैसा सलूक करना सबके साथ। उसको नहीं देखना कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, किसी कम्युनिटी का नहीं। 65 साल में मैंने देखा कि जो भी कम्युनिटी, जो भी लीडर आता है, वो मां जैसा सलूक नहीं करते। वो देखते हैं कि अगर वो किसी भी कम्युनिटी से, वो अपने घर ही भरते हैं, वो अपने ही घरों के अपने ही जेब में भरते हैं। अच्छा, गाड़ बाजार गर्ल्स, गाड़ बाजार शहर पर। Beyond the old camp are new entrants like former councillor Tawseef Rena contesting from Baramulla. Tawseef, how are you? Finally we meet. Yes. Yeah. Thank you. I've been following you as a councillor. Yeah. And today now. Chalo, that's your vehicle, your campaign. That's not mine. That's my opponent's. Acha. See, in Kashmir, you may be an opponent, but the candidate may still clear a path for you. Yeah, exactly. And that's the beauty. We respect our opponent first. Look at this. Wow, sir. Both candidates. Sir, कैसा campaigning चल रहा है? अच्छा चल रहा है। So you are meeting your fellow candidates प्यार से? I am equivalent to his father. His father. You have NC, PDP, Congress, now BJP also, अपनी party, DPAP. You have too many options. Why will you go independent? बेसिकली वहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए स्पेस नहीं है। अच्छा, किसके लिए स्पेस है? वहाँ पे स्पेस है जिसका कोई रिश्तेदार सियासत में हो, जो किसी पॉलिटिकल लेगेसी से आता है, जिसका कोई फैमिली लेगेसी हो। हम आम लोगों को वहाँ पे खाली पोस्टर चिपकाने के लिए रखते हैं और नारेबाजी के लिए। Because गुस्सा बहुत है हर लीडर्स के खिलाफ। I witnessed it. So then why will they vote for you? Are you here to bring change or what kind? They have already seen my style of work and the way I was available for them. Yes. I was here for the 2 years. और यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे MLA बन के जाते हैं वो श्रीनगर जाते हैं, वो फिर वहाँ पे रहते हैं। आप यहीं के हो? मैं यहीं का हूँ और यहीं पे रहता हूँ। Son of the soil. Son of the soil. उन्होंने बहुत काम किया हमारे बारामूला के लिए। हाँ। नया नेता चाहिए या पुरानी पार्टीज? नया। मगर नेता क्या चुकारुन तो इवन में? नेता क्या चुकारुन? लूकन से। लूकन काम से मिसकारी अगर करने के That is an intimidating message that you have to work. You have to work for people. मैं एक स्ट्रीट वेंडर हूँ, रेडी वाला। मैंने काम बंद किया 10 दिन के लिए ड्यू टू तौसीफ रैना, क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है। क्योंकि हमें लगाने नहीं देते, पुलिस भी हमारे पीछे थी, म्यूनसिपैलिटी भी हमारे पीछे थी, हर कोई हमारे पीछे। जब से ये आया यहाँ बारामूला में हमने आराम किया। आपको लगता है people will vote for a young
डेफिनेटली लोग तो एक ऐसे चेहरे की तलाश में हैं जिन्होंने जो एक नया चेहरे की तलाश में है, तो मुझे नहीं लगता है कि तौसीफ साहब से बेहतर कोई उनके पास ऑप्शन होगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके लिए, आप जब वोट करोगे यहाँ पे? जी एक तो बेकार है, दूसरा महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। आर्टिकल 370 है, वो सब भी है? वो भी है, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम होगी ना इससे। कैसे? क्योंकि लोगों को जहन में यही हो गया, ये मोदी साहब ने गलत किया वगैरह किया, छीन लिया, ये नहीं था छीना था। देखिए यहाँ पे टोटल बेरोजगारी है, यूथ बेकार है, नौकरियाँ कुछ नहीं है, सब वेस्ट है, कारोबार भी नहीं है। कारोबार कहाँ? तो अब आएंगे इंडस्ट्री, बोल रहे हैं मोदी साहब की अब तो हम इंडस्ट्रीज लेके आएंगे बड़े बड़े। सोल्यूशन नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। आप कुछ चाहते हो सोल्यूशन आपके माइंड में होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? देखिए अगर कम से कम अगर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होती है छोड़ दो, कम से कम कश्मीरियों के साथ तो बात करें। कश्मीरियों से बात नहीं हो रही है कहाँ? अगर कश्मीरियों के साथ बात हो जाएगी सब सोल्यूशन हो जाएगा। Kashmir's beekeeping industry is an important agricultural source. Apiculture provides livelihood to hundreds of growers, selling organic honey across the country. सर बहुत ही बढ़िया जगह रहते हैं आप तो, हाँ? सर असली जन्नत तो यही कहते हैं। बेशक। ओह वाओ, लुक एट दैट। एज सच तो नेता बात नहीं करते हैं हनी इंडस्ट्री के बारे में, तो क्या उनको करना चाहिए? आज आप बताओ, अगर आपको सुन रहे हैं, क्या जरूरत है आप लोगों के, क्या मसले हैं? फेक हनी होता है तो वो सबसे बड़ा, चीनी वाला सिर्फ जो होता है वो सबसे बड़ा मसला है इसमें, क्योंकि जो हमारा असली हनी होता है वो बहुत मेहनत से हमें तैयार होता है, तो जो सिर्फ होता है वो 60-70 रुपए का तैयार होता है और 700-800 रुपए का चला जाता है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, टेस्टिंग का होना चाहिए। टेस्टिंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग, फूड सिक्योरिटी अप्रूवल होता है। हाँ अप्रूवल होता है, तो इसमें वो कोई नहीं है। जहाँ पे आप ये बीज रखते हैं, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। I'll take the risk. I've never done this before, but you know it's one in a lifetime opportunity. अब रेडी हैं हम। नासिर, if you can zoom in to show, this is such a rare moment that we are showing to a viewer in Delhi, Mumbai, Bangalore. In over 15 years of my career, I have been a part of many daring, risk-worthy, life-threatening assignments, but I have to say, this has felt the most daring to me. Dar ke aage jeet hai, is what I can say today. So, fascinating, isn't it? How somewhere in a village in Baramulla, there is a honey industry. This is real honey, not sugar, not pirated, not adulterated. And these are the people who in many ways are ensuring that the world exists. It's the bee, it's the pollination. That's the most basic for a certain flora and fauna to continue. अल्ताफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Thank you so much. Thank you. Baramulla has shown a paradigm shift in the voting pattern. Once Gilani's boycott hub, in Lok Sabha elections recently, the polling percentage was approximately 60%, breaking all previous records. Will Baramulla again create history in 2024? The future of Jammu Kashmir elections will likely be decided from here. With Nasir Aziz Khan, Pooja Shali, India Today. Okay, let me turn to the other state that's going to the polls, the state of Haryana. And I want to bring you today the story of one of India's richest women. Savitri Jindal, 74-year-old, joined the BJP in March this year, right before the Lok Sabha elections, after quitting the Congress. But when the state election was announced and she was not named as a party candidate, well, that came as a surprise to many. Now, the two-time MLA from Hisar and former Haryana minister has decided to contest as an independent from the Hisar constituency. The story of Savitri Jindal is next on Election Unlocked. She is the matriarch of the Jindal family, worth $40 billion.
After her husband O.P. Jindal, Savitri Jindal contested from Hisar for Haryana Assembly election for the first time in 2005 for Congress and won it. In 2009, she was re-elected, and in her second term as Hisar MLA, she also became minister in the state government. It has been a decade that Congress has been out of power in the state and in the centre. In March 2024, Savitri Jindal left Congress and joined BJP. But when the candidate list for Haryana Assembly came out, BJP clearly overlooked her. भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ। 74-year-old Savitri Jindal decided to contest as an independent candidate. उम्मीदवार तो कितने साल पार्टी में रहे, क्यों छोड़ के गए पार्टी? टिकट नहीं मिली इसीलिए ना। टिकट के लिए आए थे क्या? आप किसी पार्टी से विचारधारा से जुड़ते हैं या टिकट के लिए जुड़ते हैं? जितने भी प्रत्याशी हैं ये सब टिकटधारी। हिसार की जनता जो है, हिसार मेरा परिवार है, हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने से ही चुनाव के अंदर खुद ही, तो ये चुनाव जो मेरा नहीं है, ये हिसार की जनता का चुनाव है। वो अपने चुनाव को बहुत प्यार से लड़ रहे हैं। She is a veteran poll star in the state, but for the first time fighting on her own in the ground from where a few months ago her younger son became the MP for BJP has caused a fissure in the family. सावित्री जिंदल के बारे में बड़ी चीजें आ रही हैं। ये भी आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। Her former party is bitter about her contesting as an independent. It would be challenging for Jindal matriarch to decide whom to support in case she wins Hisar. जो हमारे उद्योगपति हैं, वो एक महीने में एक दिन हिसार आते हैं। महीने में 29 दिन जो है हिसार से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। जब जनता को कोई समस्या आ जाएगी तो उसका हल कौन करेगा? विधायक, उसका प्रतिनिधि। लेकिन वो प्रतिनिधि जो है उनको हमारी हिसार की जनता को मिलता ही नहीं। इसलिए जो है जनता एक तरफा वोट जो है को कांग्रेस को करके और जो है कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। क्योंकि इस समय तो मेरी पार्टी जो है मेरी जनता है और बाद में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसमें तो मैं जनता के कहने पर, हिसार परिवार के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ और यही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ मेरा तो अपना बैंक के कहने पर प्रत्याशी बनी हूँ और ये जिस तरह से कहेंगे मैं उसी तरह से करूँगा। 5th October, Hisar will decide whether to trust their fate once again with the Jindal matriarch or not. Bureau Report, India Today. Okay, let's turn from Savitri Jindal's story to the story of Haryana's young. There are about 7.5 lakh voters who are young in Haryana under the age of 25. Last weekend, I was in Rohtak and I got together some of these young voices to ask them what are they looking for, particularly in a state which has one of the highest youth unemployment rates in the country. This is what I found. The youth factor. Now, traditionally in recent times, remember, Prime Minister Modi and the BJP have got a large chunk of the youth vote. But this is a state with one of the highest youth unemployment numbers in the country. What do the young want? I'm going to find out with these young people from a private university, MDU. All well, everybody? Yes, sir. क्या कहते हैं हरियाणवी में all well के लिए? सब ठीक ठाक। वो तो हिंदी में भी कहते हैं। हाँ? ठीक से। सब राजी खुशी। अब बताओ, युवाओं के लिए सब राजी खुशी है या कोई दिक्कत है? अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स में देखता हूँ बहुत बड़े हैं, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा इशू है ही, खासकर हरियाणा में तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत हाई रेशियो चल रहा है। क्यों? नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? नौकरियां है ही नहीं। ये सरकार पिछले 10 साल से कोई नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल कर रही है और कॉन्ट्रैक्चुअल में भी जॉब्स नहीं है। पर आपको सब गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए? प्राइवेट भी दोनों चाहिए सर। हाँ, दोनों चाहिए। प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी क्रिएट करने में फेल है।
प्राइवेट जॉब भी क्रिएट नहीं कर पा रही है। नहीं तो प्राइवेट जॉब के लिए तो प्राइवेट एंटरप्राइज होना चाहिए ना, वो तो इंडस्ट्री ने करना है। इंडस्ट्री भी तो नहीं क्रिएट कर रही है ना, ये जो नहीं, इंडस्ट्रीज फरीदाबाद गुरुग्राम में तो है, बहुत कम इंडस्ट्रीज है। जो यहाँ इंडस्ट्रीज आनी थी उनको भी गुजरात या यूपी शिफ्ट कर दिया गया, बहुत सारी इंडस्ट्री। नहीं, फरीदाबाद और हो या गुरुग्राम हो, वहाँ तो है ना। वहाँ भी इतनी नहीं है, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं सबके। इंडस्ट्री जो नए सेटअप लगने थे, जैसे मारुति का सेटअप था, यहाँ पे सुजुकी का सेटअप लगना था रोहतक में, वो सारा यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा में रहकर यंग होने का बेस्ट चीज क्या है हरियाणा की? आपको सबसे, आप लोग सबकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी है यार। दूध दही का खाना ये अपना हरियाणा। ये दूध दही का खाना ये अपना हरियाणा। हरियाणा की बेस्ट चीज क्या है? हलवा, घी, देसी दही, दूध। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हरियाणा में रहने के? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेसिकली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अभी जैसे कि आप प्राइवेट के लिए बात करें, प्राइवेट में 75% की जो अमेंडमेंट थी गवर्नमेंट ने करा था कि 75% रिजर्वेशन होगा इन प्राइवेट सेक्टर, वो भी हाई कोर्ट अभी वो पेंडिंग केस है। ये कमिटमेंट 2019 में हाँ, किया था। दुष्यंत चौटाला ने जो करा था वो भी अभी क्या है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो वहाँ पे जैसे आउटर के जैसे कोई और स्टेट से आ रहे हैं उनको यहाँ जॉब दे रहे हैं प्राइवेट में भी। तो हमारे लिए तो प्राइवेट है ना, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स कोई भी सिक्योर नहीं है। हम लोगों में जज्बा तो है, कुछ तो करना है। अब आप देखिए ओलंपिक, आप देखिए ओलंपिक गेम, देखिए ओलंपिक गेम में तो हरियाणा तो नंबर 1 आता है। बिल्कुल नंबर 1 आता है। हाँ, तो यानी अगर आप में जज्बा है तो आप कर सकते हैं। आप सरकार को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? सरकार जो हमें साधन चाहिए, अब एक 20 साल का लड़का है वो अपने दम पे क्या ही पढ़ाई कर सकता है या आगे एडमिशन लेकर, लेकिन उसको भी कुछ साधन चाहिए ना कि मुझे रिसोर्सेज मिले, गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करवाए हमें सर्विसेज। यूनिवर्सिटी में स्किल सेट होना चाहिए। कुछ स्किल सेट नहीं है यूनिवर्सिटीज में, कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है, प्रोफेसर आते हैं टाइम से पहले चले जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से। स्टाफ भी पूरा, यूनिवर्सिटी में स्टाफ पूरा नहीं है, कॉलेजेस में स्टाफ पूरा नहीं है। आप लोग इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे पिछले 10 साल में कुछ हुआ नहीं है, ये भी गलत है। ऐसा तो नहीं है सर, देखो 1,40,000 नौकरियां लगी है, ऐसा नहीं है। और बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगी हैं, ऐसी भी कोई समस्या नहीं है। बिना खर्ची और बिना पर्ची, ये बड़ी ऐसा सर ये एक बात बताइए, आम लोगों से आम पैसे बढ़ गए, पॉइंट देख रहे हैं, पैसे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं बढ़ा, सब ऑनलाइन होती है ट्रांसफर। अगर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफर करनी है तो ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कीजिए और आप अपनी ट्रांसफर कराइए। इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। अगर जो युवा, जो बिचौलिया थे, जो मिडिलमैन थे, वो कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ। बोलने दीजिए उसको। हाँ। बिल्कुल कम हुआ है सर, बिल्कुल। जब एक चीज ऑनलाइन हो गई, जब पोर्टल खुलेगा, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आपको आपका स्टेशन चेंज कर दिया जाएगा। पर जब पोर्टल खुलेगा, ऐसा नहीं कि आप मंत्री जी की पर्ची लेके आ रहे हैं और आपको वो सिस्टम मिले। कह रहे हैं पहले मंत्री जी की पर्ची पर आपको नौकरी मिलती थी, अब वो बिचौलिया की सिस्टम खत्म हुआ है और नौकरी सबको जो काबिल है, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसको नौकरी मिल रही है सर। और ऐसा नहीं है कि युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि ये इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। उस हिसाब से गवर्नमेंट को सिस्टम बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, लोगों को प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ रुझान बनाना चाहिए, अपने काम धंधों की तरफ भी रुझान बढ़ाना चाहिए। हरियाणा ऐसा स्टेट है जो पूरे दिल्ली को से नजदीक लगता हुआ स्टेट है आज तक। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा के इतिहास की तो हरियाणा में से ही लुटियंस दिल्ली निकली है, हरियाणा का ही पार्ट था वो। हम लोगों के अंदर बहुत कैपेसिटी है, हमारे को सिर्फ सरकारी नौकरी और इस चीज के ऊपर नहीं रुके रहना तो चाहिए। ये कह रहे हैं कि बिचौलिया कम हुई है, ये कह रहे हैं अब ऑनलाइन होकर उनको ज्यादा नौकरियां मिल रही है। बात ऑनलाइन की, अभी कुछ लिमिटेड कर लिया कि 4 ऑप्शन लेते हैं वो, कि पहला 1 2 3 4 यू कैन चूज द ऑप्शंस, उसके बाद उसमें से कोई ऑटोमेटिकली उठेगा। तो पहली बात, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको नहीं मिल रहा है। लेडीज है कोई, तो उसको अगर अपना होम टाउन नियर बाय चाहिए, बच्चे भी सर संभाल लिए हैं, घर आके काम भी करना है, तो उसके रिलेटेड क्या है। लेकिन इससे अब सरकार, चलो ठीक है, जस्ट फॉर द नेम सेक उन्होंने कर दिया कि हमने तो पोर्टल बना दिया, लेकिन उन्होंने 5th एक ऑप्शन रखा है सर कि भाई हम, अगर हमारे पास कोई इंडिविजुअल आता है अपनी दिक्कत लेके कि भाई आप आओ और हमें बताओ कि आपके पास क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको सोल्यूशन क्या करेगा, मंत्री जी उसका सोल्यूशन करेंगे, पोर्टल सोल्यूशन नहीं कर रहा है। ये मुझे बताइए, हरियाणा में जाति को लेकर डिवाइड है क्या? जाट बनाम नॉन जाट बनाम दलित पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा हो गया है सर। पहले बिल्कुल नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। जाट बनाम नॉन जाट नहीं था सर। ये नारा ही तो बीजेपी सरकार ने आगे दिया है कि हम तो 35 जात के हैं। अरे भाई 36 में जात में आपने क्या बिगाड़ दिया? ये नारा बीजेपी का है, 36 जात की सरकार है, किसी भी जात की नहीं है। और किसने ये बात बोली ये मैं बोलना नहीं चाहता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी है फैक्टर, तो फैक्टर हम उनको लेके चले। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है।
वो तो देखो ऊपर तो है ही है। हाँ, अभी यहाँ कौन बनेगा उस पे। आपने राजनीतिक हीरो का पूछा, हमारे लिए हीरो है। पर आप कह रहे हैं कि इस चुनाव जीता जाएगा जो वहाँ हुड्डा बनाम नायब सिंह सैनी। क्या कहते हैं थैंक यू के लिए? हरियाणवी में क्या कहें आपको? राम राम भैया ने बहुत मेहरबानी, राम राम, बहुत बहुत मेहरबानी, राम राम। 10 साल का राज बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी। That's all that we could pack in on this edition of Elections Unlocked. News and updates continue. Keep watching India Today.